artsy evening, dear ladies and gentlemen, artists, art lovers, art enthusiasts. I welcome you all to an evening that is carved in creativity. On behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy and Chandigarh Tourism, it is my heartfelt honor and pleasure both to welcome you all to the awards ceremony and printmaking exhibition of Chandigarh Lalit Kala Academy Open Hand Art Studio Award winners. Well, the audience this evening, under the visionary canopy of the Chandigarh architecture and in the very heart of La Corbusier's legacy, we gather here not just to witness a ceremony, just a ceremony. Rather, it's a celebration. It's a celebration of the spirit of art, of the spirit of creativity, of the spirit of printmaking, the texture of imagination, and the powerful impressions left by the passionate hands and the creative minds. Well, this event, like I mentioned, is not just a showcase. It is a tribute to art, a tribute to craft, a tribute to color, to commitment, to devotion, to compassion. And today, here we honor remarkable printmakers whose works, they do more than just adorn these walls. Well, they speak, they question you, they probe you, they prod you, they evoke emotions in you. Their prints, they echo with depth, with dialogue, and most importantly, with passion and devotion. Their art is not just visual, let me tell you, it's visceral. Each stroke is a question, each color is a pause, a reflection, and each form an answer you didn't know you were looking for when you looked at it at the first place. And in this celebration of art, dear ladies and gentlemen, we are deeply honored to have amongst us a chief guest for the occasion, Professor Prem Singh, a name so colossal that it certainly warrants no introduction. Sir, he's a mentor, he's an artist, he's a guru, he's a pioneer in the world of art. And most importantly, he's a reservoir of creativity, of humility. And we're so lucky, we are so honored to have Sir's presence here with us. We wholeheartedly welcome you, Sir. And now, the audience, before we take this creative garama forward, let's take a moment and graciously welcome those loving souls who've graced this event with their benign presence. So firstly, I will request Mr. Bhim Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to please present a planter to our chief guest for the occasion, Professor Prem Singh. The audience, you all can welcome Sir with your warmest applause. Well, I say Sir is not just a man who's an artist. He's an art movement in himself, and we're so honored to have his presence here with us. I'd now request Prem Sir to please present a planter to Mr. Upender Chehel from Chehel Tool Company. Well, he's a partner in precision, a quiet enabler of creativity. Sir has very generously sponsored one of these 3 printing presses. We wholeheartedly welcome you, Sir. I'd now request Mr. Ravinder Kumar Sharma to please present a planter to Shri Nihal Chand Dogra, a financial advisor. Sir has been with us, supported the Academy through thick and thin, making these platforms, these events possible. We wholeheartedly welcome Sir and appreciate Sir's association with the Academy. I'd now request Shri Abhishek, Director, Tagore Theatre. We'd like to formally welcome Sir as well. I'd request Kanwal Pal Sir to please come forward and present a planter to Abhishek Sir, another connoisseur of art, of creativity. We're glad enough, Sir, to host you. Thank you so much for being here with us. Now, the audience, as we continue this evening that is brimming with creativity, it is only befitting that we hear from the guiding force behind Chandigarh Lalit Kala Academy, who's someone whose quiet dedication and tireless devotion and efforts make such platforms possible. So on this note, I would request Shri Bhim Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to enlighten us with the vision behind this event. Sir. So respected Shri Prem Singh ji, former Principal, College of Art, Chandigarh, and the Ternale Award winner. So sir, we are feeling proud with your kind presence, and luckily last time भी हमारे चीफ गेस्ट यही थे. So thank you very much. सौरभ अरोड़ा जी जिनको आज आना था, तो
बाय चांस उनको एडवाइज़र सर ने बुला लिया, कोई मीटिंग आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये नॉर्मली ऐसे चलता ही है, सो वो नहीं आ पाए। सो रिस्पेक्टेड प्रेम सिंह सर, हमारे डोगरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड प्रेजेंस। तो अभिषेक जी, डायरेक्टर टैगोर थिएटर, एंड हमारे जो सिटी के आर्टिस्ट हैं, साधना हैं, विशाल जी हैं, मदन जी हैं, महेश प्रजापति जी हैं, और पीछे मैं देख रहा हूँ तुली साहब हैं, काफ़ी हमारे तेजी साहब हैं, वडेरा साहब हैं, कि मैं किस किस का नाम लूँ, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे यंग आर्टिस्ट भी हैं, और हमारे जो अवार्ड विनर हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। पीछे तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग बैठे हैं, सो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और दूसरा जो हमारा ये वाला जो स्पेशल इवेंट है, इसको मैं स्पेशल क्यों बोलूँगा, क्योंकि वी आर स्पेशल। वो क्योंकि पूरे इंडिया में कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन ये मशीनों का अवार्ड कोई नहीं दे रही है। देखो, पेंटिंग वाले लोग घर बैठ के कैनवास लेके पेंट कर लिया, और जो बड़ा इजी होता है कैनवास लेके पेंट करना। जो प्रिंट मेकर हैं उन बेचारों के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि इतनी महंगी मशीन खरीद के कैसे अपना स्टार्ट करें। जैसे कोई निकलता है आर्ट कॉलेज से, तो 2022 में मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए, इस तरह वाली चीज़ स्टार्ट की जाए। तो उसमें हमारे छैल साहब हैं जो मशीनें बनाते हैं, इनकी मशीनें पूरे इंडिया में सप्लाई होती हैं। इंडिया क्या, पूरा कनाडा, नेपाल, इधर बांग्लादेश, और काफ़ी सारे, इन्होंने मुझे 6-7 कंट्रीज़ में बताया। तो वी आर लक्की कि हमारे शहर में इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इन मशीनों के। पूरे इंडिया में 3-4 जने हैं इस तरह की मशीन बनाने वाले। सो थैंक यू छैल साहब। बीच वाली मशीन 75,000 की है, ये तीसरी बार ये हमें दे रहे हैं ये। और जब हम ये 2025-26, 24-25, 22-23, 21-22 सारी इन्होंने एक एक मशीन हमें स्पॉन्सर की है। खाली मशीन स्पॉन्सर नहीं की है, जो 2 मशीनें हमने इनसे परचेज की हैं, 1,10,000 की है, वो 45,000 की है, उसमें भी इन्होंने हमें 25% डिस्काउंट दिया है। अभी इन्होंने हमें चौथा भी दे रहे हैं, इस बार जो चौथा जो हम 25-26 का वी आर लॉन्चिंग, हम उसको भी लॉन्च कर रहे हैं अभी। तो चौथे वाली भी इन्होंने बता दिया है कि जितने तक मैं हूँ तो मशीन तो हर साल ही मिलेगी। सो दिस इज़ द ग्रेटनेस। सो थैंक यू वेरी मच छैल साहब। और दूसरा जो हमारा ये वाला जो इवेंट था, इसमें हमारी जूरी आई थी दिल्ली से। ये थे आनंदमोई बनर्जी एंड सुरेंद्र मिश्रा। दे आर वेरी इमिनेंट प्रिंट मेकर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल। तो उससे तो हमारी जो लोकल जूरी हुई थी, लोकल में हमारे महेश प्रजापति जी बैठे हैं, ये प्रिंट मेकर हैं नेशनल लेवल के, सिटी के जो बेस्ट प्रिंट मेकर। तो इनको हमने प्रिलिमिनरी जूरी में रखा था। जो फाइनल जूरी में वो दोनों आए थे। तो उन्होंने जो हमारे पास 50-60 कैंडिडेट आए थे, तो 20-25-30 बाहर से आए थे। तो टोटल जो है, टोटल उसमें से 35 जनों का इंटरव्यू हुआ। तो उसमें से ये 3 जने सेलेक्ट हुए, और उसमें हमने 5-7-8 जनों को स्कॉलरशिप भी दी। जो 53 जो टोटल जो आए थे हमारे पास एंट्रीज, स्कॉलरशिप वालों को जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं उनको हम 15,000 ईच और 2 महीने यहाँ पे काम करने के लिए देते हैं स्टूडियो में। तो जो भी बच्चे यहाँ पे स्टूडियो में काम करके गए हैं, जस्ट टू शेयर, जैसे बड़ौदा से आए थे प्रिंट मेकर, यहाँ पे दिल्ली से आए थे, उन्होंने बोला कि वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटिंग स्टूडियो, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पे, जो एम्बियंस हम यहाँ पे दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा कुछ देखा हुआ है। जब चंडीगढ़ आते हैं तो उनको देख के दे फील वेरी डिफरेंट कि ये स्टूडियो ही अपने आप में बड़े वो हैं। तो यहाँ जो हम इनको फैसिलिटीज देते हैं, जो एम्बियंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ौदा के अब आर्टिस्ट और दिल्ली के काम करके गए हैं जिनको हमने स्कॉलरशिप दी है। तो अभी जो मशीन वाले, तो एक आर्टिस्ट आए हुए हैं, ये मिस्टर सावन दिल्ली से। ओ यू हैव कम, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ असम आर्टिस्ट। से एक सिलचर और असम से आर्टिस्ट हैं, शी नाउ डेज इन जर्मनी। तो उनके बिहाफ पे एक उन्होंने भेजा किसी को। सो ये दिल्ली से आए हैं मशीन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सौरभ अरोड़ा जी, हमारे बराड़ साहब, मनदीप बराड़ जी, कल्चर डिपार्टमेंट हमारा स्टाफ है, सुभाष है, मोनू है, शिल्पी अरोड़ा है, श्रुति है, और हमारे जो ललित कला एकेडमी का स्टाफ है, और हमारे ललित कला एकेडमी के मेंबर हैं, विशाल जी हैं, महेश जी हैं। तो और मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगा। किसी का रह गया हो तो आई फील सॉरी। तो हमारे रविंदर शर्मा जी है, कमल पाल जी है, तो सबके कंट्रीब्यूशन में ही सब होता है ये। Thank you so much, sir. The audience has some voices, and these voices, they carry profound wisdom of decades. And the silence between their words, well, is more powerful than thunder.
Some artists, and these artists, they just don't paint. They shape thought, they nurture futures, and they leave nothing. They leave no stone unturned to inspire young artists, young minds. They leave behind them not just art but legacy. And we're so fortunate, we're so lucky to have one such breathing soul here with us in form of Professor Prem Singh, who's a guru, a mentor, and most importantly, a seeker, wonderful human being. And sir, we would now like you to enlighten us all with your words. Your works are definitely etched in our memory, and we would like your words to shape our thought. I now request sir to take over the podium, sir. मैं अभी भीम मल्होत्रा और इनकी सारी बातें सुन रहा था, तो सुनते सुनते मैं वहाँ पहुँच गया जब मैं सबसे पहले चंडीगढ़ में आया था। मैं 1961 में चंडीगढ़ में आया था। तो 1962 में जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट है, ये उससे पहले शिमला में होता था, तो वहाँ से ये चंडीगढ़ आया था जो। और 1962 में ही मैंने एडमिशन ली थी। तो उस वक़्त जो प्रिंट मेकिंग है, जो ग्राफिक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो वहाँ फैसिलिटीज़ थी, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक रोलर होता था छोटा सा, और एक ब्लैक इंक का डिब्बा, और एक टेबल, और उसके ऊपर एक शीशा रखा होता था। और प्रिंट मेकिंग के लिए वो हमें अपना सामान लेके आना पड़ता था। तो उसमें क्या था कि हम लिनो और वुड कट, तो ये दो मीडियम में हम काम करते थे। तो उस वक़्त जो प्रिंट है वो हाथ से निकाले जाते थे, कि हमने तो उस वक़्त जो प्रिंट मेकिंग मशीन देखी भी नहीं थी जो। तो हम क्या करते थे कि लिनो कट करना, फिर उसके ऊपर रोलर से इंक अप्लाई करनी, और इंक अप्लाई करके फिर उसके ऊपर कागज़ रख के जो एक सूप स्पून होता था, तो उसको हम रगड़ते रहते थे। तो जितनी हिम्मत होती थी, तो उतनी हिम्मत से हम 4-5 प्रिंट बना लेते थे। तो हम वहाँ से चले थे, आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से 2001 में रिटायर हुआ था। तो उस वक़्त जो है हमारे कॉलेज में फुल फ्लेश्ड जो है डिग्री और पोस्ट डिग्री जो बाद में हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट का प्रिंट मेकिंग का कोर्स शुरू हो गया था वहाँ पे। तो वहाँ सारी इक्विपमेंट्स आ गया था। तो जो उसके बाद जो ललित कला एकेडमी भी थी उस वक़्त, उसका सेक्रेटरी मैं भी रहा हूँ। तो उस वक़्त हमें जो है एनुअल बजट हमारा 60,000 का होता था। तो हमें 60,000 दिया जाता था। तो उसमें जितना भी हम विद इन दैट अमाउंट जो भी एक्टिविटी कर सकते थे, तो हम करते थे जो है। तो लेकिन हमें जब ये हम देखते थे ओपन हैंड, तो इसमें एक कर्बूजियर का एक कॉन्सेप्ट था कि ओपन टू गिव, ओपन टू रिसीव। तो इसको देख के मतलब हम बड़े होपफुल होते थे कि भाई एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा। तो जो हमारा जो चंडीगढ़ का ओपन हैंड है, ये इस सिटी की सोल एंड स्पिरिट को रिप्रेजेंट करेगा जो। तो मैं देख रहा हूँ उसमें जो चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी का रोल है, मैं सोचता हूँ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल है कि जितना जो पिछले 15-20 सालों में चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने चंडीगढ़ में आर्ट को विजिबल किया है जो है, तो मैं नहीं सोचता कि मुल्क में कोई ऐसी एकेडमी होगी जिसने इतना काम किया होगा जो। और दूसरा, मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला है।
तो मैं मतलब गया हूँ, तकरीबन यूरोप में भी गया हूँ, यूके में भी गया हूँ, कनाडा भी गया, यूएसए भी गया। तो सारी जगह ही जो है मतलब आर्ट के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो है। तो कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि भाई ये तो हम ड्रीम लैंड में आ गए, जैसे यूटोपिया में आ गए, जहाँ जहाँ आइवरी टावर में पहुँच गया है। तो यहाँ तो मतलब कलाकार जो है एक बड़ा महान शख्सियत की तरह है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक जगह, कोई चाहे बड़ा मुल्क है चाहे छोटा मुल्क है, तो सब मुल्कों में जो है आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है जो है। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ये संघर्ष ही आर्टिस्ट की एक पहचान है जो है। तो जो संघर्ष करके आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ा कोई और प्लेयर है नहीं जो है। क्योंकि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, तो इससे बड़ी ऊपर वाले की क्या मेहरबानी होगी आपके ऊपर जो है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये जो भीम मल्होत्रा हैं, जो इसकी टीम है, इवन जो ऑडियंस में भी बैठे हुए हैं, तो जब मैं टीचर था ये मेरे स्टूडेंट थे, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनको मैं पढ़ाया वो भी उस्ताद बन गए जो है। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जो है कि भाई, और जो वो इस वक्त चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी इन स्पाइट ऑफ देयर ओन कमिटमेंट्स जो है, कॉलेज में है, चाहे कोई स्कूल में है, चाहे वो कोई ऑफिस में है, तो उस कमिटमेंट्स के बावजूद जो है, जो ये इतना लगन से ये काम कर रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ कि ये अपने आप में एक मतलब एक वर्थ एमुलेटिंग एग्ज़ाम्पल है जो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो एक टाइम पे जो है चंडीगढ़ में प्रिंटिंग मशीन थी नहीं कभी, तो आज वही प्रिंटिंग मशीन कर्सी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वो अपनी जो फिराक दिली जो दिखा रहे हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं और डोनेट भी कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा पैटर्न हमारे लिए और कौन होगा जो है। तो हमें सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए होगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पैटर्न चाहिए, और जो हम काम करते हैं उन काम को डिस्प्ले करने के लिए दीवारें चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जो आर्टिस्ट की एक सफ़र है, तो वो एक मतलब अपने आप में एक जर्नी, जिसे हम कंप्लीट जर्नी कह सकते हैं, तो वो मैं सोचता हूँ कि अकम्प्लिश कर लेता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके भी। मैं बाई चांस ही आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पर मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और इस चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी को तो मैं हमेशा प्रेज़ करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जिस जगह पे हम बैठे हैं, तो इस जगह ने हमें चंडीगढ़ दिया हुआ है जो। तो ये जो इसके जो विजनरी थे, या इसके जो कंसीव का जो कॉन्सेप्ट जो चंडीगढ़ का जो बनाने वाले थे लोग, तो ये वो जगह है जहाँ पे इवॉल्व हुआ जो। तो इस जगह की एक अपनी अहमियत है। तो उन लोगों के लिए भी ये हमारी एक श्रद्धांजलि है जो हम काम कर रहे हैं। तो वो बहुत खुश होते होंगे जब कहीं भी अगर वो उनको महक जाती होगी हमारे काम की जो है। तो और मैं वैसे तो पिछले 25 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, पर चंडीगढ़ से मेरा बहुत पुराना संबंध है। संबंध ये है कि आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है, सन, स्पेस एंड साइलेंस, तो ये शहर उसको देता है। तो मैं सोचता हूँ कि इससे आइडियल सिटी और कौन सा हो सकता है आर्टिस्ट के लिए। तो इन शब्दों के साथ मैं अवार्ड विनर्स को मुबारकबाद देता हूँ, चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी को बधाई देता हूँ, और इनको मतलब इसके थ्रू ही मैं ये चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी की जो लाइफ लाइन है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का मैं ख़ास तौर पर मतलब आर्टिस्टों के बिहाफ पे जो है मतलब स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने चंडीगढ़ को एक आर्ट सेंटर की तरह
प्रमोट किया है, और इसकी जो गूंज है, जो इसकी जो महक है, वो मैंने सारी जगह घूमा है, सारी जगह मिलती है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your inspiring words. As sir mentioned, Chandigarh's open hand is open to give and open to receive. And truly, so is art. Well, art, it gives without measure, and it receives with love and without pride. On this note, the audience, to add more light, to add more spark to this magical evening, I now invite Sri Ravinder Kumar Sharma, Vice Chairman of the Academy, to enlighten us with his words. हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारे गुरु प्रोफेसर प्रेम सिंह जी बैठे हैं। प्रशासन के दो हमारे शुभ चिंतक जो हमारी आत्मा का नूर आगे लेके जाने वाले हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन सर। और आर्टिस्ट और जिनको आज यहाँ से नाम मिलना है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। उनके पेरेंट्स भी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भीम जी के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो मैं कई बार, मुझे वो अभी एक गीत याद आ रहा था, प्रहलाद फिल्म देखी थी कि अपना हरि है हजार हाथ वाला। उसमें वो गाते हैं कि जो हमारा हरि है, मैं समझता हूँ कि जब आदमी की आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है तो वो हरि है, और वो जो दिल में चाहे यहाँ से उधर हो जाता है। इस ओपन एंड स्टूडियो में आप आज महसूस करेंगे कि लई कारबीजर की आत्मा यहाँ पहुँची होगी। प्रेम सिंह सर ने बहुत बार हमारे लिए वो शब्द कहे हैं दिल्ली से भी, जिन्हें सुनकर यहाँ तक कि हमारे भीतर, मैं भीम जी से दिन बात कर रहा था कि एक दिया जल जाता है अंदर, शब्दों में इतना नूर है। और कुछ युवा बच्चे बैठे, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ली कार्बूजियर ने एक जगह बहुत भावुक होकर कहा था कि आई प्रेफर ड्राइंग टू टॉकिंग, ड्राइंग इज इजी एंड देर इज लेस रूम फॉर लाइज। झूठ नहीं बोलता आदमी ड्राइंग करते वक्त। यहाँ वो ड्राइंग हर वक्त चलती रहती है। मैं इन बच्चों को जो यहाँ काम करते हैं उनके चेहरों पे नूर देखता हूँ। नहीं मिलते ऐसे मौके। राहुल से पूछ रहा था, कहते सर जब ये मेरे मशीन मेरे घर में है, ये हमें बैठने नहीं देती। ये चीज़ें जो एकेडमी की तरफ से भीम जी ने घरों तक भेज दी हैं, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज यहाँ प्रोफेसर प्रेम सिंह सर ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि किस प्रकार शहर ने प्रिंट मेकिंग की यात्रा शुरू करी। और मैं इस मौके पे सबसे दुनिया के महान प्रिंट मेकर एल्बर्ट ड्यूरर की बात भी ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहीं डेमोन्स्ट्रेशन दी तो उनसे स्टूडेंट्स ने पूछा, सर आपसे कुछ गलत नहीं होता, आपको ये आइडियाज़ कैसे दिखाई देते हैं कि ड्राइंग ऐसे करनी है। ये जो युवा बच्चे बैठे हैं उनको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब हाथ बहुत काम करता है तो कई बार दिमाग को भी नहीं पता होता, हाथ सुजेस्ट कर देता है। कर्म इतनी पाबंदता लिए हुए है। अगर आप हाथ से कुछ कर रहे हैं, मदन जी बैठे हैं, मैं इनकी ड्राइंग देख के भी वो महसूस करता हूँ कि कई बार जब आप हाथ से ड्राइंग करते हैं तो दिमाग बाद में कहता है कि मैं तो सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत ही अच्छा। हैंड गाइड्स माइंड। और एक जगह फिर उन्होंने स्टूडेंट को बताया कि मैं जब ड्राइंग करता हूँ तो करेक्शन मेरी दूसरी लाइन ही कर देती है। आई नीड नॉट टू रब इट, दैट इज़ क्रिएटिविटी। सो भीम जी, मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन स्टूडियोज़ में जो लगातार ये यज्ञ चल रहा है, निरंतर काम हो रहा है, उसमें आपका तपस्या बहुत मैटर करती है। आप सचमुच हजार हाथ डाल रहे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पीछे मैडम प्रेम सिंह जी की एग्जीबिशन लगी थी। मैं अभी तक भी उनके नूर से आज वो हमारे साथ बैठे हैं और हमारा सौभाग्य है कि सर अपनी शक्ति के साथ यहाँ हैं। मुझे किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने, कि सर ये स्पेसिंग जो मैडम की पेंटिंग में है, ये कैसे
आप डिफाइन करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया और मैं बाद में कहीं लिखा भी है ये, कि ज़मीन के अंदर जड़ें अलग अलग पेड़ों की जैसे एक दूसरे से जुड़ के स्पेस को डिफाइन करती हैं, ऐसे आपका काम था मैडम। इसीलिए इन ओपन एंड स्टूडियो ने आपका नूर अभी तक भी अपने में समाया हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. The audience, now let's move forward in this creative journey. Well, with immense pride and anticipation, we are delighted to announce the launch or the release of the Chandigarh Lalit Kala Academy Open Hand Art Studio Award for the year 2025 to 2026, which is an initiative that in a way offers young, emerging, aspiring artists not only a space to work, but a space to grow, a space to realize dreams and carve those dreams into reality. On this note, I will now request our chief guest for the occasion, Professor Prem Singh, to please come forward and to do the honors. This is the moment of unleashing another powerful initiative that will give opportunity to aspiring artists to shine. To learn more about the initiative and to register, you can always log in to the website of the Academy. And now, the audience, after this powerful launch, now let's head towards the most awaited segment of today's function, that is the honors conferment ceremony. All right, the audience, now it's time to celebrate our wonderful printmakers. So our first award is Chandigarh Lalit Kala Academy Open Hand Art Studio Award, and that is awarded to Amit Kumar from Chandigarh for his exemplary work in printmaking. A dedicated, a passionate artist who leaves no stone unturned to fulfill and make his dreams a reality. He receives a floor model etching press. The audience, once again, a reverberating round of applause for our award winner, artist Amit Kumar. Our second award winner is Dibangana Paul from Silchar, Assam. Well, she could not be here with us today, so we have with us Mr. Savan to kindly accept this award on her behalf. The audience, once again, a reverberating round of applause for our award winner, Ms. Dibangana Paul. Well, she's also awarded with a tabletop etching press. Our next award winner, dear audience, who wins Chandigarh Lalit Kala Academy Open Hand Art Studio Award is Gurleen Kaur. Gurleen Kaur from Chandigarh. She receives a small mini press to continue and to embark upon a new creative journey. We truly congratulate her. And now we move on to the announcement of the Open Hand Art Studio Scholarship. This scholarship is awarded to aspiring printmakers who've certainly shown dedication and artistic potential. So our first scholarship winner is artist Sunena. Next we have artist Pancham Gaur. I'd request Tokras sir to please join us for this ceremony. These are our shining stars of the printmaking galaxy. Next we have is artist Nitin Kumar. The audience, each award winner deserves a thunderous applause, so please don't deprive them of your applause. Next we have is artist Vivek Sharma. Artist Anita Kaur and Simran have also been awarded with the scholarship, but for some reason they're not here with us. Moving forward, the audience, we finally arrive at the announcement of the allotment of scholarships in 2-month day residency under the Chandigarh Lalit Kala Academy program for artists across the country. And this award is awarded to Mr. H. Kadiwala from Vadodara, Gujarat. Well, these artists are not here with us, but needless to say, they deserve our applause. Our next artist award winner is artist Milton Mondal from West Bengal, artist Harsh Saini from Haryana, and artist C. Chakrabarti from Andhra Pradesh.
A reverberating round of applause for all our artists. And now I request all the award winners, scholarship holders to please come forward for a group photograph. The audience, we now take a small moment to present and to honor a soul who's made this entire endeavor possible for us. I'd request our chief guest for the occasion to please present a memento. To Chehel sir, I'd request Sri Upinder Chehel. This is a small token of love, of gratitude for your blessed association with the Academy. The audience, I now invite you all to please join us for the inauguration of the exhibition of the prints created by our wonderful printmakers. And on this note, the audience, as we close this ceremony, I once again thank each one of you for being part, for being the light and warmth of this ceremony. Thank you so much.